بدنام محبت از رمشا حیات پارٹ نمبر 3 ٹوٹل پارٹس 10 سائمہ کے دوست بھی اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ فاضل سویرا کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا۔ سویرا اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ فاضل کیا چاہتا تھا سویرا کو بہت جلد معلوم ہو جانا تھا۔ جس طرح کی زندگی سویرا چاہتی تھی اسے ویسی زندگی مل گئی تھی۔ سویرا جب بھی فاضل سے اس کی فیملی کی بات کرتی تو وہ ہمیشہ ٹال دیتا۔ فلیٹ کے 2 ہی کمرے تھے اور آج عمیر فاضل کے فلیٹ پر ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ سارا پلان فاضل کا تھا کیونکہ ایک کمرے میں سویرا رہتی اور دوسرے کمرے میں فاضل رہتا۔ فاضل باہر لاؤنج میں لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب سویرا وہاں آئی۔ آپ یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ سویرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ میرے کمرے میں عمیر اور اس کی وائف ہے، اگر اس کی بیوی ساتھ نہ ہوتی تو میں اسی روم میں سو جاتا، فاضل نے عام سے لہجے میں کہا۔ آپ میرے کمرے میں آ جائیں، سویرا نے جلدی سے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ فاضل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ سویرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے میری بیوی کی مرضی، فاضل نے بھی ہنستے ہوئے کہا اور روم میں چلا گیا۔ اس ایک ماہ میں سویرا پوری طرح سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی اور اپنے ماں باپ کو بھی بھول بیٹھی تھی کہ ان پر کیا گزری ہوگی، کس طرح انہوں نے لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا ہوگا۔ سویرا بھی ابھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ عمیر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آیا تھا، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ عامر بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا، اس لیے فاضل اور عمیر سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی اور یہ دونوں کیا کر رہے ہیں اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ فاضل بیڈ کی دائیں طرف لیٹا ہوا تھا۔ سویرا نے فاضل کو کمرے میں لیٹنے کا کہہ تو دیا لیکن اب اسے عجیب لگ رہا تھا۔ سویرا کیوں گھبرا رہی ہو؟ فاضل تمہارا شوہر ہی تو ہے۔ سویرا نے خود کو تسلی دی اور بیڈ کے بائیں جانب آ کر لیٹ گئی۔ سویرا کے لیٹتے ہی فاضل نے اپنے چہرے کا رخ سویرا کی طرف کر لیا۔ سویرا تم خوش ہو؟ فاضل نے تھوڑا سویرا کی طرف کھسکتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں فاضل، میں جب گھر سے نکلی تو میرا ارادہ اپنی فرینڈ کی طرف جانے کا تھا لیکن میں اتنے اچھے کی امید بالکل بھی نہیں کی تھی۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو جاتا ہوں، فاضل نے سویرا کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ سویرا نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، فاضل نے سویرا کے کان کے پاس سرگوشی نما کہتے اس کے کان کی لو کو ہلکا سا کاٹا تھا۔ سویرا کے گال سرخ ہو گئے، اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھیلے۔ اجازت ہے؟ فاضل نے بہکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سویرا نے بنا آنکھیں کھولے اسبات میں سر ہلایا۔ فاضل نے سائڈ ٹیبل سے لیمپ کو آف کیا اور سویرا پر جھکتا چلا گیا۔ آج اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا، سویرا کو پانے کا مقصد، اور سویرا نہیں جانتی تھی کہ فاضل نے کس طرح سے اسے اپنے جال میں پھنسا کر اپنا مطلب پورا کیا ہے۔ اور وہ وقت تو بہترین استاد ہے جو آپ کو ایسا سبق سکھاتا ہے جو انسان پوری زندگی نہیں بھولتا۔ آرزو مان کے ساتھ باہر آئی تو ارشمان کے ساتھ سفیان کی نظریں بھی اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ مان نے دونوں کی نظروں کو نوٹ کیا۔ مان، یہ سفیان ہے، آرزو کی شادی میں نے اس کے ساتھ طے کی ہے۔ شاداب ملک نے مان کو دیکھتے ہوئے سفیان کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا۔ سفیان کو پہلے ہی مان کی نظروں سے خوف آ رہا تھا جس طرح وہ دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ، جب تک میں ہاں نہ کہہ دوں اس وقت تک یہ شادی نہیں ہوگی، مان تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے بولا تھا۔ مان کی بات نے سفیان کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی تھی اور ارشمان اب آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سالہ اب سب کچھ سنبھال لے گا، اتنا اسے یقین تھا۔ بیٹا، مان بھائی ہے، آرزو کا تو ایسے ہی کہے گا نا؟ شاداب نے بات کو مزاح میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی بالکل انکل، جب تک بھائی ہاں نہیں کریں گے اس وقت تک آرزو سے میری شادی نہیں ہو سکتی، سفیان نے بھی ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ان سب کے دوران آرزو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ انکل اب میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں مان کی وجہ سے رک گیا تھا، سفیان نے شاداب کو کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شاداب نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا کیونکہ مان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ سب کے سامنے سفیان کو بے عزت کر دے، اس لیے ابھی اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ آرزو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتے ارشمان سے ٹکرائی۔ اسے لگا جیسے سامنے دیوار آ گئی ہو، اسے دن میں ہی تارے نظر آنے لگے تھے۔ جب اسے سامنے دیکھا تو ارشمان گہری نظروں سے آرزو کو دیکھ رہا تھا۔
आरजू ने घूरकर अपने सामने खड़े अर्शमान को देखा और वहां से जाने के लिए मुड़ी। इससे पहले अर्शमान आरजू का हाथ पकड़कर इससे रोकता, लेकिन सामने से आते मान की वजह से ऐसा नहीं कर पाया था। आकिफ कहाँ है? मान ने गले मिलते पूछा, तो अर्शमान ने उसे आकिफ के बारे में बताने लगा। आरजू, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मान ने टेरेस पर खड़ी आरजू को कॉफी का कप पकड़ाते हुए पूछा। जी भाई, जितनी देर मर्जी चाहे आप बात कर सकते हैं, आरजू ने कॉफी का कप पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? कोई फ्रेंड बनाई? मान ने कॉफी का घूंट भरते हुए पूछा। पढ़ाई एकदम परफेक्ट जा रही है और फ्रेंड एक बनी है, बहुत बतूनी है लेकिन अच्छी है। अब मुझे भी इसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो अच्छी बात है, फिर तो इस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने मेरी बहन को फ्रेंडशिप करने पर मजबूर कर दिया, मान ने हंसते हुए कहा। भाई, मुतासिर तो मैं भी इससे हूँ, आरजू ने कहा। सफियान, तुम्हें कैसा लगता है? मान का सवाल बिल्कुल अचानक था। कुछ देर के लिए तो आरजू खामोश रही। तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं क्या अखज करूं? मान ने आरजू की तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछा। आरजू अभी भी खामोश थी। सफियान, उसे कोई मसला नहीं था, लेकिन निकाह का बताने की हिम्मत भी नहीं थी। अगर अर्शमान का मान को पता चल जाता तो शादाब और अजीम की दोस्ती भी दरार आ जानी थी, जो आरजू हरगिज नहीं चाहती थी। भाई, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, आरजू ने नजरें झुकाए हाथ की उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। कौन है वो? और अगर मैं गलत नहीं तो क्या वो अर्शमान है? माँ ने थोड़ी से आरजू का चेहरा ऊंचा करते हुए पूछा। जी। आरजू हैरान जरूर हुई थी, लेकिन उसने अस्बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। अर्शमान की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदगी देख चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। माँ ने अपना रुख सामने चलती गाड़ियों की तरफ कर लिया था। वो भाई, बस मुझे टेंशन थी कि कहीं आप गलत ना समझे, आरजू ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा। आरजू, तुमने कब ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचूंगा? माँ ने सीधे सीने पर हाथ बांधते हुए संजीदगी से कहा। सॉरी भाई, आरजू ने शर्मिंदगी से कहा। आरजू, तुम मेरी बहन हो और मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है। अगर तुम्हारी खुशी अर्शमान के साथ है तो ठीक है। अर्शमान हमारा कजन है, आंखों के सामने बड़ा हुआ है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा, मान ने प्यार से कहा। थैंक यू सो मच भाई, आप बेस्ट भाई हो, आरजू ने खुशी से मान के सीने लगते हुए कहा। मान ने मुस्कुराते हुए आरजू के सर को थपथपाते हुए कहा। मेरी बहन को जो अपने भाई पर मान है, मैं उसे कैसे तोड़ सकता हूँ? माँ ने आरजू की नाक को खींचते हुए कहा। भाई, अब मैं बच्ची नहीं जो ऐसा ना क्या करे, आरजू ने मुंह बनाते हुए लाड से कहा। मेरे लिए तो बच्ची ही रहोगी, माँ ने हंसते हुए कहा। आरजू के दिल से काफी हद तक बोझ हल्का हो गया था। अब वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगे थे। रूही नहीं आई, वो कहाँ है? सफिया बेगम ने मुलाजमा से पूछा, लेकिन जवाब रूही की माँ की तरफ से आया। बड़ी बेगम, उसे रात से बहुत तेज बुखार है, रूही की माँ ने बताया। क्या हुआ? उसे कल तो अच्छी भली थी, सफिया बेगम ने परेशानी से पूछा और नाश्ता छोड़ के रूही के कमरे में जाने के लिए उठ गई। रेहान शाह चौंका जरूर था, लेकिन फिर नजरअंदाज करके अपना ध्यान नाश्ते पर लगा दिया। सफिया बेगम कमरे में दाखिल हुई तो रूही बुखार में तप रही थी। तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? रात को ही डॉक्टर को बुला लेती, सफिया बेगम ने परेशानी से रूही के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। बड़ी बेगम, मैं तो आपको बताना चाहती थी, लेकिन रूही ने मना कर दिया, कहती आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, रूही की माँ ने भी परेशानी से कहा। तुम जाओ, शाह को कहो डॉक्टर को फोन करे, सफिया बेगम ने रूही की माँ को कहा और वो कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद शाह के साथ डॉक्टर भी रूम में दाखिल हुआ। शाह की नजर रूही के चेहरे पर पड़ी, जो बेसुध लेटी बुखार से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसे तकलीफ में देखकर उसे फिर से अफसोस हुआ। कल रूही के कमरे से निकलने के बाद उसे ढेरों शर्मिंदगी ने घेर रखा था, लेकिन अब उसे बुखार में देखकर अपने किए पर पछतावा हो रहा था, जो हमेशा होता है। लेकिन शाह रूही को तकलीफ देने से बाज नहीं आता। डॉक्टर ने कहा परेशानी वाली बात नहीं, कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। मेडिसिन देने और कुछ एहतियात बताने के बाद वो चला गया। शाह की नजरें रूही के चेहरे पर जमी। सफिया बेगम और रूही की माँ कुछ देर बाद वहां से चली गई थी। डॉक्टर की बात ने दोनों को मुतमईन कर दिया था। शाह ने छोटे छोटे कदम लेता रूही के पास आया और उसके माथे पर हाथ रख के बुखार चेक किया, जो अभी भी था। मैं नहीं जानता क्यों तुम पर मुझे इतना गुस्सा आता है,
शाह ने रूही के चेहरे को देखते हुए धीमे लहजे में कहा और इसके चेहरे पर आई कुछ लटों को पीछे करने लगा। जब इसकी नजर रूही के दाएं हाथ की तीसरी उंगली पर पहनी अंगूठी पर पड़ी, शाह का हाथ वहीं रुक गया। इस अंगूठी को देखकर इसके चेहरे के तासरात फिर से पथरीले हो गए थे। शाह ने गुस्से में रूही की उंगली से अंगूठी निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। सेठ जी, आप वापस कब आए? पिंकी ने हैरानगी से पूछा। अपना सामान लेने आया हूँ, सेठ ने अपनी लंबी मूंछों को ताव देते हुए कहा। क्या मतलब? सलमा ने परेशानी से पूछा। पहले ही शाह और मलिक कम थे, जो सेठ भी आ गया था। सेठ लगभग 40 साल का था, हर तरह के नाजायज काम और बुरे काम ये करता था, काफी बार जेल भी जा चुका था और आज भी पूरे 2 साल बाद वापस आया था। पुलिस इसके पीछे थी और 2 साल तक इसने खुद को पुलिस से छुपा रखा था। सलमा भाई, तुम अच्छे से जानती हो, जब पिंकी को पैसों की जरूरत थी तो इसने मेहरू को मुझे बेच दिया था, तो वो लड़की अब मेरी है। तुम्हें क्या लगा सेठ 2 साल तक गायब रहा तो वो भूल गया होगा? मेहरू जैसी लड़की को कौन पागल भूल सकता है? जाओ और मेहरू को लेकर आओ, सेठ ने तंजिया लहजे में कहने के बाद हुक्म देते हुए कहा। सेठ जी, इसके बाद आप कहीं गायब हो गए, मैं आपके पैसे वापस करना चाहती हूँ। पिंकी से गलती हो गई थी, आपने जो पैसे दिए थे वो मैं वापस कर देती हूँ, सलमा ने जल्दी से कहा। तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? सेठ ने सलमा को बालों से पकड़ते हुए गुस्से में कहा। सेठ जी, आप क्या कर रही हैं? छोड़ें आप ही को, पिंकी ने आगे बढ़ते हुए कहा। वहीं रुक जाओ तुम, वरना अभी तुम दोनों की कब्रें यहीं खोद दूंगा, सेठ ने चिल्लाकर कहा। तो पिंकी वहीं रुक गई। जो कुछ मैंने इसके साथ अपने घर में जाके करना था अब यहीं करूंगा और फिर तेरे सामने उसे घसीटते हुए लेकर जाऊंगा, सेठ ने बेबाकी से कहका लगाते हुए कहा और सलमा को धक्का दिया, जो औंधे मुंह जमीन पर जा गिरी थी। मेहरू का कमरा कौन सा है? सेठ ने वहां खड़ी लड़कियों से पूछा, जिनमें एक शबनम भी थी, जिसने मेहरू के कमरे की तरफ इशारा किया। सेठ के वहां से जाते ही पिंकी सलमा के पास आई। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मुझे ये लगा था कि बला टल गई है, लेकिन ये फिर यहाँ आ गया, सलमा ने पिंकी को घूरते हुए कहा, जो खुद भी शर्मिंदा हो रही थी। तुम लोग क्या तमाशा देख रही हो? जाओ अपने कमरों में, नायाब ने गुस्से में कहा और वो भी अपने कमरे से बाहर आई थी। लेकिन सलमा और पिंकी को देखकर उसे पता चल गया था कि यकीनन कोई बड़ा मसला है। क्या हुआ है? नायाब ने परेशानी से पूछा। सेठ वापस आ गया है और वो मेहरू के कमरे में गया है, सलमा ने जवाब दिया। क्या आप दोनों यहाँ आराम से बैठी हो? नायाब ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। हम लोग क्या कर सकते हैं? ना सेठ को रोक सकते हैं, ना हम मलिक को रोक सकते हैं और ना ही हम शाह को रोक सकते हैं, सलमा ने नायाब को देखते हुए कहा। मलिक, शाह, नायाब ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और वहां से उठकर मेहरू के कमरे की तरफ भागी। रूही बेटा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? बुखार तो काफी हद तक उतर चुका है, सफिया बेगम ने प्यार से कहते हुए पूछा, जो रूही के सरहाने बैठी हुई थी। मुझे क्या हुआ था? रूही ने भी उठते हुए बोझल लहजे में पूछा। तुम्हें बहुत तेज बुखार था, लेकिन अब उतर चुका है, सफिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। मामा, अम्मी कहाँ हैं? रूही ने सफिया बेगम के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। बेटा, वो गाँव गई है, कोई जरूरी काम था और तुम्हारी अम्मी का जाना भी जरूरी था। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर इकट्ठे नाश्ता करते हैं, सफिया बेगम ने बताया। तो रूही ने इस बात में सर हिलाकर फ्रेश होने चली गई। क्या कहा तुम्हारे भाई ने? अर्शमा ने आरजू के कान के पास सर गोशी नमा पूछा था। अपने कान पर पड़ती गर्म सांसों की तपिश से आरजू खुद में सिमट गई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। अगर जरा से भी पीछे मुड़ती तो अर्शमान के सीने से जा टकराती। कुछ खास नहीं, आरजू ने धीमे लहजे में कहा। झूठ, मुझे पसंद नहीं है जान, अर्शमा ने आरजू का रुख खुद इसकी तरफ करते हुए इसके कमर में हाथ डालते मजीद अपने करीब करते हुए कहा। आरजू की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। मैंने कुछ पूछा है आरजू ये जान, अर्शमा ने आरजू की कमर पर अपनी पकड़ सख्त करते हुए कहा। आरजू की आंखों में पानी तैरने लगा था। मैंने भाई से झूठ बोला है, आरजू ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा। कैसा झूठ? अर्शमा ने हैरानकुन लहजे में पूछा। दोनों में फासला न होने के बराबर था। कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आरजू ने नजरें झुकाकर कहा, जैसे किसी जुर्म का इतराफ कर रही हो। वाओ, इसका मतलब अब साला साहब मुझसे बात करेंगे। तो अगर मैं तुमसे शादी करने से मना कर दूं तो? अर्शमान ने थोड़ी से आरजू का चेहरा ऊपर करते हुए संजीदगी से कहा। आरजू को अर्शमान की बात से करंट लगा था। उसे समझ नहीं आ रही थी ये करना क्या चाहता है। तुम आखिर चाहते क्या हो?
क्यों मेरी जिंदगी जहन्नम बना रहे हो? क्यों मुझे लोगों के सामने रसवा करना चाहते हो? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? आरजू ने अर्शमान का गिरबान पकड़ते हुए बेबसी से पूछा। अभी से हिम्मत हार गई? अभी तो तड़पना बाकी है। अर्शमान ने आरजू के दोनों बाजू को पकड़ते हुए रुखे लहजे में कहा। और तुम्हारा भाई कब से रिश्ता से इनकार करेगा? आज सफियान के घर वाले आ रहे हैं, कल निकाह है। इस साले को कुछ ज्यादा जल्दी है निकाह की। अर्शमान ने आखिरी बात गुस्से में कही। मुझे नहीं मालूम, छोड़ो मुझे। आरजू ने गुस्से में खुद के बाजू अर्शमान की गिरफ्त से आजाद करते हुए कहा। छोड़ दिया। अर्शमान ने आरजू के दोनों बाजू को आजाद करते हुए कहा और कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा अपने साले साहब के जवाब का, जब वो सफियान के घर वालों के सामने रिश्ते से इनकार करेंगे। अर्शमान ने मुस्कुराती नजरों से आरजू को देखते हुए कहा। तुम बहुत पछताओगे अर्शमान मलिक। आरजू ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा और बिना इसका जवाब सुने वहां से चली गई। पीछे अर्शमान अपने हाथ की मुट्ठी बनाए अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। जितना भी वो आरजू को तकलीफ देने की कोशिश करता, लेकिन बाद में उसे भी तकलीफ होती, लेकिन इन सब में उसकी अना आ जाती और ना चाहते हुए भी वो आरजू को तकलीफ दे देता। साइम अपने कमरे में आया और आते ही शॉवर लेने चला गया। इसकी आंखों के सामने नायाब का सरापा घूम रहा था, जिस पर वो वहां बैठे तमाम लोगों की नजरें जमी हुई थी। वो एक तवाइफ है साइम, तो इसके बारे में अब नहीं सोचेगा, साइम के दिमाग ने कहा। मोहब्बत नहीं देखती कि वो तवाइफ से हो रही हो या किसी शहजादी से, ये तो बस हो जाती है। साइम के दिल ने भी नायाब के हक में गवाही दी। चुप हो जाओ तुम दोनों, साइम ने चलाते हुए कहा और अपने कानों पर हाथ रख लिया। साइम बेटा सब ठीक है? कोसर जो किसी काम के सिलसिले में आई थी, इसके चलाने की आवाज सुनी तो परेशानी से पूछा। मामा मैं ठीक हूँ, साइम ने संभलते हुए जवाब दिया। ठीक है बेटा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे एक जरूरी बात करनी है, कोसर बेगम ने कहा और कमरे से चली गई। साइम को अपनी कही हुई बातों पर अफसोस हो रहा था। उसे नायाब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गुस्से में इंसान ना जाने क्या कुछ बोल देता है और फिर बाद में अपने अल्फाज के बारे में सोचकर पछताता है। साइम के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अब तो वो अपने लफ्जों के जोहर दिखाकर आ चुका था। एक बात पर साइम अभी भी कायम था कि वो दोबारा कभी भी उससे नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त से ला इल्म था। अगले कुछ दिन भी बहुत खुशगवार गुजरे थे। सवेरा ने अपने माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो बाजिल ने ये कहकर खामोश करवा दिया कि अभी मिलना मुनासिब नहीं है। कुछ दिनों के बाद सवेरा को खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन इस खुशखबरी ने बाजिल को ज्यादा खुश नहीं किया। बाजिल ने सवेरा को कहा कि वो अभी बच्चा नहीं चाहता, लेकिन सवेरा अपनी बात पे कायम रही कि वो उसे बच्चे को दुनिया में जरूर लाएगी। बाजिल को सवेरा से झगड़ने का मौका चाहिए था। बाजिल ने बच्चे की बात पर सवेरा के साथ झगड़ा किया और गुस्से में घर से निकल गया। सवेरा को समझ नहीं आ रहा था कि बाजिल को बच्चे से क्या मसला है, लेकिन वो कम अकल इस बात से बेखबर थी कि इस बच्चे से नहीं बल्कि अब सवेरा से उसे मसला है। बाजिल का काफी दिनों से घर नहीं आया था। सवेरा को अब टेंशन होने लगी। इसने काफी बार बाजिल को फोन किया, लेकिन इसे फोन नहीं उठाया। उठाता भी कैसे, वो दूसरी लड़कियों के साथ बिजी हो गया था। इसका दिल सवेरा से भर चुका था, अब उसे किसी दूसरी लड़की की तलाश थी। बाजिल ने सवेरा को अपने ऑफिस में देखा था। इसके बाद इसे सवेरा के बारे में सब कुछ मालूम करवाया और उसे लगा कि सवेरा इसके जाल में आसानी से फंस जाएगी, और ऐसा ही हुआ। जिस दिन सवेरा मार्केट में गई थी और जब अबाया वाली औरत सवेरा के साथ टकराई थी, वो औरत नहीं बल्कि उमैर बाजिल का दोस्त था। बाजिल और उमैर ने पूरा एक प्लान बनाया था। उमैर ने इस नेकलेस को सवेरा के बैग में इस तरह डाला कि वो नेकलेस आधा बाहर नजर आ रहा था। फिर बाजिल का आकर सवेरा को बचाना। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बाजिल अपने प्लान में कामयाब होता गया, और जब उसे सवेरा के निकाह की खबर मिली तो गुस्से में सवेरा से मिलने आया तो वो उसे मार्केट में मिली और उसे अपनी मेहनत जाया होते हुए महसूस हुई थी। लेकिन फिर रात को जब सवेरा ने उसे कॉल करके बताया कि वो निकाह नहीं करना चाहती, तो बाजिल का काम और भी आसान हो गया। बाजिल ने नकली निकाहनामा बनाया और उस पर सवेरा के दस्तखत दिए। इसका मकसद सिर्फ सवेरा को इस बात का यकीन दिलाना था कि इन दोनों का निकाह हो चुका है, और सवेरा ने भी यकीन कर लिया क्योंकि इससे निकाहनामे पर दस्तखत किए थे। सवेरा ने पूछा कि मैंने कबूल है, तो कहा ही नहीं, तो ये कैसे निकाह था? तो बाजिल ने कहा कि जब हम तुम्हारे अम्मी अबू से मिलेंगे तो फिर तमाम रस्म व रवाज के साथ निकाह कर लेंगे। बाजिल बुरी तरह सवेरा के ख्यालात पर काबिज हो चुका था। जो वो कहता सवेरा आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेती। एजिल की भाभी अपने आवारा भाई के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी। भाभी का भाई कोई काम करता तो नहीं था और 24 घंटे अपनी बहन के घर ही नजर आता था।
بھابھی نے ایزل کو اس رشتے کے بارے میں بتایا، بلکہ ان کا انداز احسان کرنے والا تھا کہ میں نے تمہاری اور اپنے بھائی جمشید کے ساتھ بات پکی کر دی ہے۔ ایزل تو اپنے بھابھی کی بات سن کر شاک ہو گئی تھی۔ بھابھی، میں آپ کے بھائی سے شادی نہیں کروں گی، ایزل نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ میرے ہیرے جیسے بھائی سے تمہیں شادی نہیں کرنی؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لیے آسمان سے کوئی شہزادہ اترے گا؟ تم جیسی لڑکی کو میرا بھائی مل رہا ہے، بھابھی نے نحوست سے کہا۔ تم اس بات پر ہی شکر کرو، میری جیسی لڑکی سے آپ کا کیا مطلب؟ آپ اپنے آوارہ بھائی کو دیکھا ہے جو مجھے باتیں سنا رہی ہیں؟ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن کوئی میرے کردار پر کیچڑ اٹھا لے، میں یہ برداشت نہیں کروں گی، اور آپ کے نشئی بھائی سے تو میری جوتی شادی کرے گی۔ ایزل نے غصے میں اپنے بھابھی کو ایک ایک لفظ باور کراتے ہوئے کہا۔ آج اسے سارا لحاظ سائڈ پر رکھ کر بھابھی سے بات کی تھی۔ بھابھی بھی ایزل کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ آج تک ایزل نے اس طرح کے لہجے میں بھابھی سے بات نہیں کی تھی۔ ایزل نے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے چلی گئی۔ تمہارا کردار، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، بھابھی نے ہوش میں آتے ہی اپنے شاطر دماغ میں کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا روحی بیٹا، کیا تلاش کری ہو؟ صفیہ بیگم نے روحی سے پوچھا، جو کچھ تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ماما، میری رنگ نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں ہے، میں نے پورے گھر میں اسے دیکھ لیا، مجھے کہیں نہیں ملی۔ بیٹا تم اپنے روم میں دیکھو، یاد کرو، وہیں کہیں ہوگی، صفیہ بیگم نے کہا۔ ماما، ایک دو جگہ رہ گئی ہیں، میں وہاں بھی دیکھ لیتی ہوں، روحی نے مسکرا کر کہا اور شاہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ایک یہی کمرہ رہ گیا تھا جہاں اس نے انگوٹھی کو نہیں ڈھونڈا تھا۔ اگر انگوٹھی ضروری نہ ہوتی تو کبھی بھی اس جلاد کے کمرے میں نہ جاتی۔ روحی نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ روحی نے شکر ادا کیا اور روم میں دبے پاؤں چلی گئی اور ارد گرد نظریں دہرائی اپنی انگوٹھی کو تلاش کرنے لگی۔ رنگ تو اسے کہیں نظر نہیں آئی، لیکن شاہ کی آواز سے اس کا دل ڈر کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، یہ کب آئے، روحی نے دل میں کہا، اور مڑ کر پیچھے کھڑے شاہ کی طرف دیکھا جو ماتھے پر تیوری لیے روحی کو گھور رہا تھا۔ میں آپ کے کمرے میں چوری کرنے نہیں آئی، کچھ ڈھونڈنے آئی تھی، روحی نے دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہیں رک جاؤ، شاہ کی باری آواز کمرے میں گونجی تھی تو روحی کے قدم وہیں تھمے تھے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ شاہ نے روحی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میری منگنی کی انگوٹھی گم ہوگی، وہ نہیں مل رہی، اگر وہ نہ ملی تو میں اپنے ہونے والے شوہر کو کیا جواب دوں گی، روحی نے پریشانی سے کہا، جبکہ ہونے والے شوہر کا سن کر شاہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ ہونے والا شوہر ابھی ہوا نہیں، اور جب تک شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، سمجھی، اور آئندہ فضول گوئی سے پرہیز کرنا، شاہ نے روحی کو وارن کرتے ہوئے کہا۔ فضول گوئی میں نے کی ہی کب ہے؟ کچھ مہینوں بعد میری، اور اس سے پہلے روحی اپنی بات مکمل کرتی شاہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا تھا۔ روحی آنکھیں پھاڑے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ آئندہ اس نمونے کا نام میں تمہاری ان خوبصورت ہونٹوں سے نہ سنوں، ورنہ، شاہ نے بات کو ادھوری چھوڑتے ہوئے روحی کے ہونٹ کے پاس دل کو انگوٹھے سے سلاتے ہوئے زورمینی لفظوں میں کہا تھا۔ آپ بھی تو میرے لیے نامحرم ہیں، روحی نے شاہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے آج شاہ کچھ عجیب لگا تھا۔ مجھے روکنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا روحی میڈم، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون محرم ہے اور کون نامحرم، شاہ نے روحی کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ روحی نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ اور ہاں، تمہاری رنگ میرے پاس ہی تھی، لیکن میں نے اسے پھینک دیا ہے، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحی نے آنکھیں کھول کر حیرت سے شاہ کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اسے حیرت انگوٹھی کے پھینکنے کا سن کر نہیں، بلکہ شاہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر ہوئی تھی، جو مسکراتے ہوئے ایک الگ ہی انسان لگ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، روحی نے شاہ کے چہرے سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف بھاگی تھی، لیکن دروازہ کھلنے پر اندر آتے قاسم شاہ سے جا ٹکرائی تھی۔ سوری، روحی نے قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، قاسم شاہ نے روحی کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، جو نہ سمجھی سے شاہ قاسم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ روحی، جاؤ یہاں سے، پیچھے کھڑے شاہ کی غصے بھری آواز کانوں میں پڑی تو روحی فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو کچھ کام تھا؟ شاہ نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھے بات کرنی تھی، قاسم شاہ نے کہا، اور جو بات کرنے آئے تھے وہ کرنے لگے۔ السلام علیکم، ماں نے ہال میں بیٹھے لوگوں کو اونچی آواز میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ شاداب ملک نے سفیان کی فیملی سے مان کا تعارف کروایا۔ ارشمان بھی وہیں موجود تھا۔ اس سے پہلے آپ لوگ نکاح کے بارے میں بات کریں، میں آپ سب لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماں نے وہاں بیٹھے تمام لوگوں کی توجہ خود کی طرف کروائی تھی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، ماں نے وہاں بیٹھے لوگوں کے سروں پر بم پھوڑتے ہوئے
आम से लहजे में कहा। मान, ये क्या बकवास कर रहे हो? शादाब मलिक ने गुस्से से घूरते हुए पूछा। डैड, मैं अपनी बहन की शादी सफियान से नहीं करवा सकता, मान ने संजीदगी से कहा। कोई खास वजह? अलीदान ने मान को देखते हुए पूछा। मां ने एक नजर अलीदान को देखा और कुछ तस्वीर अलीदान की तरफ बढ़ाई। मेरा ख्याल है ये वजह काफी है, मां ने कहा और सफियान के वालिदैन को देखने लगा जो खुद नजरें दे रहे थे। अलीदान के साथ बैठे शादाब मलिक ने भी तस्वीर देखी तो गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। सफियान किसी लड़की के साथ बेड पर मौजूद था और तीनों तस्वीरों में अलग अलग लड़कियां इसके साथ मौजूद थीं। मुझे नहीं लगता तुम अपने बेटे की हरकतों से नावाकिफ हो गए थे। जिस तरह तुम नजरें चुरा रहे हो, इसका साफ मतलब है कि तुम्हें भी मालूम था कि तुम्हारा लाडला ये सब कुछ करता है। शादाब मलिक ने अपने पार्टनर को देखते हुए गुस्से में कहा, जिसके पास देने की कोई वजाहत नहीं थी। अंकल, अब आप यहाँ से चले जाएं, अलीदा ने संजीदगी से कहा तो सफियान के वालिदैन खामोशी से मलिक विला छोड़ के चले गए थे, क्योंकि यहाँ रुकने का अब जवाब नहीं बनता था। रुबीना और राबिया तो हैरानगी से एक दूसरे की शक्लें देख रही थी कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। आई एम सॉरी बेटा, मुझे सफियान के बारे में मालूम करवाना चाहिए था, ये मेरी गलती है। शादाब साहब ने शर्मिंदगी से मान को देखते हुए कहा। डैड, मैं आपको शर्मिंदा हरगिज नहीं करना चाहता, और ये मेरी बहन की पूरी जिंदगी का मामला था, तो आपने मालूम नहीं करवाया तो मैंने मालूम करवा लिया। आप परेशान ना हो, माँ ने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा। लेकिन बेटा, आरज़ू पर क्या गुजरेगी, मुझे इसकी फिक्र हो रही है, शादाब ने परेशानी से कहा। डैड, इसे मैं संभालूंगा, आप बेफिक्र रहें, और अभी मुझे आकिफ की भी खबर लेनी है, मैं चलता हूँ, माँ ने मुस्कुराकर कहा और वहां से निकल गया। कोई नहीं जानता था कि जब सफियान को पता चलेगा तो वो क्या करेगा। इतनी आसानी से तो वो आरज़ू का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। कहाँ होता है तू आजकल? माँ ने घूरते हुए आकिफ से पूछा, जिसे आज मुलाकात हो रही थी। यार, ऑफिस में होता हूँ, आकिफ ने अपनी गाल को सहलाते हुए कहा, जो माँ ने आते ही उसके जबड़े पर जोर से मुक्का मारा था। वो तो शुक्र था आकिफ अपनी कैबिनेट में था, वरना इसकी इज्जत का फलूदा बन जाना था। मुझे तो तेरे मुताबिक यहाँ कोई काम नजर नहीं आ रहा। तू सारा दिन ऑफिस में करता क्या है? माँ ने तंज करते हुए कहा। यार, ऑफिस में काम करता हूँ और क्या करूंगा, आकिफ ने गड़बड़ाकर कहा। तेरी रग रग से मैं वाकिफ हूँ और मैं तेरे ऑफिस होने की वजह भी जल्द ही जानूंगा। अभी जरा तू मेरे साथ चल, माँ ने आकिफ को देखते हुए कहा। यार, तूने अच्छी खासी मेरी शक्ल खराब कर दी है, मैं किस मुंह से बाहर जाऊंगा? आकिफ ने घूरते हुए पूछा। ये जो मुंह अल्लाह ने इतना बड़ा तुझे दिया हुआ है ना, उसी के साथ बाहर तशरीफ लेकर जाएगा, वरना तुझे गाल पे भी नक्शा बिगाड़ दूंगा, माँ ने धमकी देते हुए कहा। आ रहा हूँ, सब्र नहीं होगा तेरे से, आकिफ ने खा जाने वाली नजरों से मान को देखते हुए कहा और दोनों ऑफिस से निकल गए। आकिफ दिल में दुआ कर रहा था कि रास्ते में इज्जत ना मिल जाए, लेकिन शायद आज का दिन आकिफ के लिए अच्छा था, इसलिए वो नहीं मिली, वरना मान को पता चल जाना था। सेठ मेहरू के कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैठी अपने ख्यालों में गुम खोई हुई थी। वाह, क्या खूबसूरती है, सेठ ने मेहरू को देखते हुए कहा। मेहरू ने चौंक कर सेठ की तरफ देखा, जो अब दरवाजा बंद कर रहा था। कौन हो तुम? और तुम सबको मेरा ही कमरा मिला है, जिसका दिल करता है मुंह उठाकर अंदर चला आता है, मेहरू ने गुस्से में सेठ को देखते हुए कहा। तो चीज ही ऐसी है, किसी भी कमबख्त को दीवाना बना देती है, सेठ ने बेबाकी से अपनी गलीज नजरें मेहरू के वजूद में घाटते हुए कहा। निकलो मेरे कमरे से, मेहरू ने मजबूत लहजे में कहा। उसे सेठ की गंदी नजरें जहर लग रही थी। निकल जाओ, सेठ ने कहका लगाते हुए कहा। पिंकी को पूरे 10 लाख दिए थे, अब तू मेरी है, समझी, सेठ ने गुस्से से कहा। क्या बकवास कर रहे हो, मेहरू ने बेयकीनी से कहा। उसे सेठ की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। बाद में तुझे बताऊंगा, अभी जो करने आया हूँ वो कर लूं, सेठ ने मेहरू की तरफ बढ़ते हुए कहा। मेहरू भाग के दरवाजे की तरफ जाने लगी तो सेठ ने उसे पीछे से पकड़ा तो शर्ट का कुछ कपड़ा कंधे से फटकर इसके हाथ में आ गया। आज से ही महीनों में मेहरू को तवाइफ होने का मतलब समझ में आया था। इससे पहले मेहरू भाग कर दरवाजा खोलती, सेठ ने मेहरू को बाजू से पकड़ते हुए इसका रुख खुद की तरफ करते एक जोरदार थप्पड़ इसके रुखसार पर मारा, जो अपना तवाजन बरकरार नहीं रख पाई और सीधी जमीन पर जा गिरी। माथे पर बंधी पट्टी में से भी खून रसने लगा था। मेहरू वही माथे पर हाथ रखे बैठी रही, सर काफी जोर से जमीन पर टकराया था। मेहरू को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन आंखों के सामने आते अंधेरे की वजह से वहीं बेहोश हो गई। सेठ ने मेहरू को बाजू से पकड़कर सीधा किया और उसके चेहरे से बाल पीछे किए
आंखों में शैतानियत के लिए मेहरू को देख रहा था। इससे पहले सेठ अपने नापाक इरादों में कामयाब होता, कोई तूफान की तरह दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुआ था। सेठ ने हड़बड़ाकर सामने खड़े इंसान को देखकर मुंह में बड़बड़ाया, मलिक? मारिज मलिक अपने मामूल के मुताबिक कोठे पर आया था। नायाब ने शाह को फोन किया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मलिक को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो इसे सामने आता हुआ नजर आ गया था। नायाब ने जल्दी से मारिज को सब कुछ बता दिया। मलिक ने दरवाजा तोड़ा और वो गुस्से में सब कुछ भस्म कर देने वाली नजरों से सेठ को घूर रहा था। इसकी आंखों में जल्दी आग को देखकर सेठ मेहरू से पीछे हो गया। मारिज ने मेहरू को देखा, जिसकी शर्ट कंधे से काफी हद तक फट चुकी थी। मेहरू की हालत मारिज को मजीद तैश में ले आई थी। तूने मेरी मेहरू को अपनी गंदी नजरों से देखा, इसे छूने की कोशिश की? मारिज ने सेठ को पकड़ के इसके मुंह पर मुक्के मारते हुए धाड़ कर कहा। मारिज मलिक सेठ को संभलने का मौका नहीं दे रहा था और मारिज ने कुछ भून से खाकर वहीं बेहोश होने वाला था। सेठ के मुंह और नाक से खून निकलने लगा था और मारिज मलिक वहशी बना किसी बात की परवाह किए बगैर सेठ को मार रहा था। मारिज ने पास पड़ी कुर्सी को उठाकर सेठ के सर पर दे मारा। मलिक बस कर, वो मर जाएगा, पिंकी ने परेशानी से कहा। सलमा और पिंकी भी कमरे में आ गई थी। इस साले की मैं बोटी बोटी कुत्तों को खिलाऊंगा। तुझे क्या लगा मारिज मलिक तुझ जैसे जलील और कमीने इंसान की जान इतनी आसानी से छोड़ देगा? तूने मलिक की मेहरू को हाथ लगाने की गुस्ताखी की और अब मरना तुझ पर लाजिम है। मारिज ने सेठ के बालों को पकड़ते हुए एक जोरदार मुकड़ा इसके जबड़ों पर मारते हुए कहा। मलिक मेहरू को देखो। नायाब ने मारिज को ध्यान मेहरू की तरफ करते हुए कहा, जो सेठ को जान से मार देने के दर पे था। नायाब की बात ने मारिज को तवज्जो मेहरू की तरफ की, जिसके माथे से खून निकल रहा था। मारिज मेहरू के पास गया और अपने कंधे पर रखी चादर को मेहरू पर डाला और उसे उठाकर बेड पर लटाया। इसकी आंखों में जो मेहरू को तकलीफ में देखकर बेबसी थी, वो नायाब के साथ सलमा बाई ने महसूस की थी। डॉक्टर को फोन करो, मारिज ने नायाब को देखते हुए कहा, जो परेशानी से हाथ मसल रही थी। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? डॉक्टर को फोन करो, मारिज ने धाड़ते हुए कहा और अपनी चादर से मेहरू के माथे का खून साफ करने लगा। मेहरू को इस हालत में देखते इसका दिल डूबे जा रहा था और आज मारिज मलिक पर एक और भी इंकशाफ हुआ था कि वो मेहरू से मोहब्बत करने लगा था। पहले इसका मकसद कुछ और था, पहले किसी और की वजह से वो मेहरू से निकाह करना चाहता था, लेकिन अब बात दिल की थी, जिसे मेहरू से मोहब्बत करने की गवाही दी थी। मलिक कोठे पर कोई डॉक्टर नहीं आता, नायाब ने परेशानी से कहा। मलिक ने नायाब की बात सुनकर फोन निकाला और अपने आदमियों को डॉक्टर लाने का कहा। सेठ के आदमी उसे वहां से लेकर चले गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया, जिस मलिक के आदमी जबरदस्ती लाए थे। तुम लोगों को एक बात में समझ नहीं आती, मैं इस नापाक जगह पर नहीं आना चाहता, तुम मुझे यहाँ लाए हो, डॉक्टर चीखते चलाते हुए कह रहा था। मलिक के आदमियों ने डॉक्टर को मारिज के सामने खड़ा किया। मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा, अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, डॉक्टर ने अपना कोट ठीक करते हुए धमकी देते हुए कहा। पिस्टल दो मुझे, मारिज ने डॉक्टर को देखते हुए कहा और उसके पीछे खड़े अपने आदमी को संजीदगी से कहा, जिसने गन मारिज को पकड़ा दी। मारिज ने डॉक्टर के शूज के पास गोली चलाई, जो चीख कर कुछ फासले पर जा खड़ा हुआ। वो सामने पेशेंट है, उसे चेक करो, वरना अगली गोली तुम्हारे दिल के आर पार होगी, मारिज ने ठंडे ठाड़ लहजे में कहा। मैं अभी करता हूँ, डॉक्टर ने घबराकर जल्दी से कहा और मेहरू को चेक करके इसकी पट्टी करने के बाद कहा कि कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर की फुर्ती देखकर नायाब हैरानकुन खड़ी उसे देख रही थी, जिसके हाथ कांप रहे थे। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, मारिज ने पिंकी को देखते हुए सर्द लहजे में कहा। मलिक साहब, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने बाद में सेठ को बहुत ढूंढा कि मैं उसे पैसे वापस कर दूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, पिंकी ने शर्मिंदगी से कहा। जाओ यहाँ से तुम सब लोग, मारिज ने संजीदगी से कहा और सारे कमरे से चले गए। मारिज मेहरू के सराहने बैठ गया। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, मामला दिल का जो बन गया है, मारिज ने मेहरू की ठोड़ी पर होंठ रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा और इसके चेहरे को देखने में मगन हो गया। सेठ साहब, लगता है किसी ने बहुत अच्छी तरह आपकी धुलाई की है। कौन है वो, मुझे भी तो पता चले, सेठ के चहीते आदमी ने हंसते हुए पूछा। बकवास बंद कर, अपने मुल्क से अपने मलिक ने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ, सेठ ने गुस्से में कहा। अभी तो इसे हिला भी नहीं जा रहा था। सेठ जी, पहले आप खुद को ठीक कर लें, फिर मलिक को भी देख लीजिएगा। और हाँ, जिस तवाइफ पर आपकी नजर है, पहले से उसके बहुत ज्यादा उम्मीदवार हैं, मैंने आज ही मालूम करवाया है, सेठ के आदमी ने हंसते हुए कहा। और कौन कौन है वो, सेठ ने हैरानगी से पूछा।
रेहान शाह को तो आप जानते हैं और मलिक साहब भी इस तवाफ के पीछे पड़े हुए हैं, तो बेहतरी इसी में है कि आप वहां अपना हाथ ना डालें। अभी तो अकेला मलिक था, जब तीनों इकट्ठे हो गए तो सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। सेठ के आदमी ने डराते हुए कहा। महरूम मेरी है और जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर सकता सुकून से नहीं बैठूंगा, सेठ ने गुस्से में कहा। बैठा तो अभी भी आपसे नहीं जा रहा, आदमी ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। जिस पर सेठ ने घूर कर इसकी तरफ देखा तो इस आदमी के मुंह को ब्रेक लगी थी। जा खाने का इंतजाम कर, सेठ ने हकीम लहजे में कहा तो वो आदमी कमरे के से बाहर चला गया था। रूबीना कहाँ है? कासिम ने मुलाजमा से पानी का गिलास लेते हुए पूछा। साहब वो रूही को मालूम है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मुलाजमा ने नजरें झुकाकर कहा। अच्छा ठीक है, घर में कौन कौन है? कासिम ने पानी का घूंट पीते हुए पूछा। साहिब, रूही और मैं हूँ। खाना बन गया है, मैं भी अपने क्वार्टर में जा रही हूँ। मुलाजमा की बात कासिम शाह की आंखों में चमक ले आई थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं रूही से रूबीना के बारे में पूछ लूंगा, कासिम शाह ने संजीदगी से कहा और उठ के रूही के कमरे की तरफ चल पड़ा। मुलाजमा वहां से चली गई। कासिम शाह रूही के कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था और वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। कासिम शाह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कमरे के अंदर आया और कमरे को लॉक कर दिया। रूही शॉवर लेकर बाहर निकली तो अपने कमरे में कासिम शाह को देखकर डर गई। इसने जल्दी से बेड पर अपना दुपट्टा उठाया और खुद को कवर किया। कासिम शाह अपनी गलीज नजरों में खबासत लिए रूही को देख रहा था। आपको कुछ काम था? रूही ने संजीदगी से पूछा, जबकि दिल इसका बहुत जोरों से धड़क रहा था। रूबीना कहाँ है? कासिम शाह ने रूही की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा। वो अपनी फ्रेंड की तरफ गई है, आने ही वाली होंगी, रूही ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। तुम डर क्यों रही हो? मैं तो बस तुमसे बात करने आया था, कासिम शाह ने रूही के सामने खड़े होते हुए कहा। कौन सी बात? रूही ने कपकपाते लहजे में पूछा। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? कासिम शाह ने बहकते हुए लहजे में कहा और अपने हाथ से रूही के चेहरे पर आए बालों को पीछे करने लगा। इससे पहले कासिम शाह का हाथ रूही के चेहरे से टकराता इसने कासिम शाह के हाथ को जोर से झटक दिया था। क्या कर रहे हैं आप? रूही ने लहजे में मजबूती लाते हुए कहा। बेशक डर से इसकी टांगें कांप रही थी, लेकिन कासिम शाह के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, बस इतनी सी ख्वाहिश है, पूरी कर दो फिर जाने दूंगा, कासिम शाह ने जोमानी अंदाज में कहा। शर्म करे, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, रूही ने कासिम शाह को नफरत से देखते हुए कहा। बेटी तो नहीं हो ना? कासिम शाह ने कहका लगाते हुए कहा। और हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तो मेरे बेटे से दूर रहा करो, और अगर किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारी माँ को इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। और तुम जानती हो कासिम शाह क्या क्या कुछ कर सकता है। अभी मैं चलता हूँ, रूबीना आने वाली होगी, अब तो हमारी बातचीत होती रहेगी, अपना ख्याल रखना, कासिम शाह ने हंसते हुए कहा और रूम से निकल गया। रूही का दिल कर रहा था कि खुद को कुछ कर ले। अगर किसी को बताती तो किसी ने यकीन ही करना था, और अगर कासिम शाह ने सच में इसकी माँ को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दिया तो रूही कासिम शाह का क्या बिगाड़ सकती थी। काफी देर के बाद सोचने के बाद रूही ने एक फैसले पर पहुंची, और इस पर अमल इसने अपनी एक अकलौती दोस्त से पूछकर करना था। अगले दिन रूही यूनी में खामोश खामोश थी, घर में भी ऐसी ही थी। रूबीना के अलावा शाह ने भी महसूस किया था कि इसका चेहरा भी मुरझाया हुआ है। रूही, क्या हुआ? सब ठीक है? आज तुम चुप चुप सी हो, आरजू ने हैरानगी से पूछा। आरजू जमान से अपनी जिस मा, आरजू मान से अपनी जिस दोस्त की बात कर रही थी वो रूही ही थी, जो हमेशा बोलती रहती लेकिन आज खामोश थी। रूही खामोश रही, इसने कोई जवाब ना दिया। रूही, क्या हुआ? कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, आरजू ने रूही का चेहरा ऊपर करते हुए कहा, जिसकी आंखें बरसने को तैयार थी। अरे यार, तुम अब मुझे परेशान कर रही हो, आरजू ने परेशानी से पूछा। रूही ने कल के वाक़ये के बारे में सब कुछ बता दिया। आरजू मुंह पर हाथ रखे रूही को देख रही थी। मैं क्या करूं आरजू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे अब डर लगने लगा है, रूही ने रोते हुए कहा। तुम अपनी मामा को बताओ यार, तुम्हारी बात जरूर समझेंगी, आरजू ने परेशानी से कहा। नहीं, वो नहीं मानेंगी, मैं कैसे इनको कुछ कह सकती हूँ, और अंकल ने मुझे धमकी भी दी है, रूही ने नजरें झुकाकर कहा। तुमने क्या सोचा है फिर? आरजू ने रूही के आंसू साफ करते हुए पूछा।
मैं गाँव चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए, रूही ने अपना फैसला सुनाया। रूही यार, वहां जाने से मसला हल नहीं हो जाएगा, तुम्हें यहाँ रहकर कुछ करना होगा, आरजू ने समझाते हुए कहा। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, अंकल की नजरें मुझे डराती हैं यार, मैं क्या करूँ, रूही ने बेबसी से कहा। तुम ऐसा करो यार, रेयान शाह से बात करो, आरजू ने एक और हल बताते हुए कहा। रेयान शाह को मैं क्या कहूंगी कि इसके बाप ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की पर गंदी नजर रखी हुई है, तुम्हें क्या लगता है वो मेरी बात मान लेगा, रूही ने रूखे लहजे में कहा। कब जाओगी तुम गाँव, आरजू ने मायूसी से पूछा। मैं आज ही मामा से बात करूंगी और तुम परेशान ना हो, हम दोनों मिलते रहेंगे, रूही ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। अगर तुम ना भी मिलने आई तो मैं खुद तुम्हारे गाँव आ जाऊंगी, आरजू ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा मसला हल हो गया, रूही ने याद आने पर पूछा। हाँ, मेरे भाई ने सब संभाल लिया, आरजू ने खुशी से बताया। और तुमने अपने निकाह का अपने भाई को बताया, रूही ने पूछा। नहीं, मैंने निकाह के बारे में भाई को कुछ नहीं बता सकी, लेकिन मैं जल्द ही इन सबको सब कुछ बता दूंगी, आरजू ने लंबा सांस लेते हुए कहा। आरजू, मुझे लगता है अर्शमान तुमसे मोहब्बत करता है, रूही ने अपने अंदाजे के मुताबिक कहा। लेकिन रूही की बात पर आरजू हंसने लगी और उसकी आंखों में हंसने से पानी भी तैरने लगा। मोहब्बत, और मुझसे? इसने मुझसे अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए निकाह किया, वो मुझे बस तकलीफ देना चाहता है, वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, आरजू ने तकलीफ से कहा। रूही के पास हौसला देने के लिए अल्फाज खत्म हो गए थे, इसलिए खामोश हो गई। दोनों अपने अपने मसलों में उलझी हुई थी। ऐसे कैसे वो लोग इनकार कर सकते हैं, मेरा निकाह आरजू के साथ होगा चाहे कुछ भी हो जाए। सफियान को जब से पता चला था कि आरजू के घर वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया है, इस वक्त से सुकून से नहीं बैठा था। अपनी हरकतों को ठीक कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, पता नहीं कहाँ हमारी परवरिश में कमी रहेगी जो तुम उल्टे कामों में पड़ गए हो, सफियान के बाप ने गुस्से से कहा। आज अपने लाडले की वजह से इनको अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। डैड, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आरजू से करूंगा, और अगर वो लोग नहीं मान रहे तो फिर जबरदस्ती ही सही, लेकिन मेरी शादी आरजू से ही होगी, सफिया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। अगर तुमने कोई फजील हरकत की तो इसके भाई तुम्हारी जान लेने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, इसलिए खबरदार अगर तुमने कुछ उल्टा काम करने की कोशिश की तो, सफियान के बाप ने तंबीह करते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा, सफियान ने अपने बाप को देखते बदतमीजी से कहा और वहां से चला गया। पीछे दोनों मियाँ बीवी बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे। इनके बेटे की जिद अब पता नहीं उसे कहाँ पहुंचाने वाली थी। मान, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहने लगे हो, कोमल ने मान के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा। मान ने पहले अपने कंधे को देखा, फिर संजीदगी से कोमल को देखा, जिसने मान की नजरों का मतलब समझते ही अपने हाथ इसके कंधे से पीछे कर लिए थे। मैं पहले भी तुमसे दूर ही रहता था कोमल, माँ ने संजीदगी से कहा। अब तो हमारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम मुझसे ऐसे दूर भागते हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी, कोमल ने शादी वाली बात जानबूझकर की थी। क्या कहा तुमने, हमारी शादी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों तुमसे शादी करूंगा, मान ने घुटते हुए पूछा। कोमल तो मुंह खुले मान को देख रही थी जो इसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती कर रहा था। और तुम क्यों मुझसे शादी नहीं कर सकते, क्या कमी है मुझ में, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, होश में आती कोमल ने भी गुस्से में पूछा। मान इसके बचपन का प्यार था। तुम मेरे टाइप की नहीं हो, और ना ही कभी मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचा है, और जिस लड़की से मैं मोहब्बत करूंगा इसी से शादी करूंगा, और वो लड़की तुम हरगिज नहीं हो, और मेरी बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो तो बेहतर होगा, माँ ने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। मान, तुम्हारे साथ शादी तो मुझसे ही होगी, और फिर चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो, कोमल ने तंजिया लहजे में कहा। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे साथ मान मलिक के साथ जबरदस्ती कर सके, चाहे वो मेरे अपने घर वाले ही क्यों ना हो, माँ ने तो मुस्कुराना अंदाज में अपने सीने पर उंगली रखते हुए कहा, और वहां से चला गया। कोमल गुस्से में पैर पटक के राबिया के कमरे की तरफ चली गई थी। आपी, आपने इजल से शादी की बात की, जमशेद ने अपनी बहन से पूछा। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी, बहुत गुरूर है ना उसे अपने किरदार पर, अब देखना कैसे मैं उसे जलील करवाती हूँ, भाभी ने नफरत भरे लहजे में कहा। आपी, आप क्या करने वाली हैं, जमशेद ने हैरानगी से पूछा। वो तुम्हें कुछ दिनों तक पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें एजल का कुछ दिनों तक पीछा करना है, और इसके पल पल की खबर तुमने मुझे देनी है, भाभी ने कहा। ठीक है, जमशेद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मेहरू की आंख खुली तो मलिक इसके पास ही बैठा था। कितना सोती हो यार तुम, मारिश ने हंसते हुए कहा। मेहरू अनजान नजरों से मारिश को देख रही थी और याद करने की कोशिश कर रही थी कि इसके साथ क्या हुआ था।
आहिस्ता आहिस्ता उसे सब याद आने लगा। वो सेठ, वो महरू ने कहना चाहा कि मारिज ने महरू के होंठों पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया। महरू का चेहरा मारिज की तरफ था। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। मर जाएगा वो, तुम फिक्र मत करो। मारिज ने महरू के होंठों को गहरी नजरों से देखते हुए आहिस्तगी से कहा। क्या मतलब है? महरू ने हैरानगी से पूछा। मरने का मतलब है कि इसका ऊपर का टिकट कट चुका है। इसके पास कुछ घंटे ही बाकी हैं। जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ वो जिंदा रहेगा, लेकिन जब मैं यहाँ से निकला तो सबसे पहले इस कमीने का काम तमाम करूंगा। मलिक ने आम से लहजे में कह रहा था, जैसे कत्ल की नहीं बल्कि किसी की शादी में जाने की बात कर रहा हो। तुम इसे जान से मार दोगे? महरू ने बेयकीनी के आलम में पूछा। बिल्कुल, इसे मलिक की जान को हाथ लगाने की गलती की तो उसे सजा भी जरूर मिलेगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, महरू ने आंख में खौफ लिए कहा। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? मारिज ने महरू की कमर में हाथ डालते हुए जो खुद के सीने पर गिराते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महरू ने मारिज से पीछे होने की कोशिश की, लेकिन मारिज की गिरफ्त इसकी कमर पर मजबूत थी। महरू के दोनों हाथ मारिज के सीने में थे। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ महरू, प्लीज मान जाओ, वरना फिर मैं जो करूंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मारिज ने महरू की आंखों में देखते हुए कहा। मुझ जैसी तवाइफ दूसरे मर्दों के लिए तस्कीन का बायस हो सकती है, लेकिन किसी की बीवी नहीं हो सकती। तवाइफों की जिंदगी में घर बसाना नहीं होता, इनका काम अपनी अदाओं से मर्दों का दिल बहलाना होता है, और मैं अपने काम से खुश हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेली ही खुद के लिए काफी हूँ। और तुम एक रात गुजारना चाहते थे ना, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। महरू ने अपने बेतासर आंखें मारिज मलिक की सुर्ख होती आंखों में घाटते हुए कहा। मारिज ने महरू को बालों से पकड़ते हुए इसका चेहरा मजीद करीब किया। अगर ये ऑफर तुम मुझे पहले करती तो मैं खुशी खुशी मान जाता, लेकिन मेरा इरादा तब्दील हो गया है। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ और तुम खुद भी मुझे रोक नहीं सकती। जिस तरह तुम मुझे खुद के करीब आने नहीं देती, इस तरह किसी भी मर्द को अपने करीब मत आने देना। महरू, अगर मैंने किसी को भी तुम्हारे करीब आते या तुम्हें छूते देख लिया तो वो शख्स तो जान से जाएगा, लेकिन तुम फिर मेरे कहर से कोई बचा नहीं सकेगा। मारिज ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा था। रात को आऊंगा, मेरा इंतजार करना, मारिज ने प्यार से कहा, और महरू का हाथ पकड़कर इसकी पुश्त पर अपने होंठ रख दिए और वहां से उठकर कमरे से निकल गया। महरू अभी भी खामोश नजरों से इस जगह को देख रही थी जहां मारिज बैठा हुआ था। इसकी परफ्यूम की खुशबू अभी भी महरू को खुद के करीब महसूस हो रही थी। बाजिल यार, क्या सोचा है तूने अपनी नकली बीवी के बारे में? कैसी है वो? उमैर ने हंसते हुए पूछा। यार, मैं तो 4 माह से घर नहीं गया, सामान वगैरह भिजवा देता हूँ और ठीक ही होगी, बाजिल ने लापरवाही से कहा। तूने सोचा क्या है इसके बारे में, या हमेशा उसे वहीं रखने का इरादा है? उमैर ने इस बार थोड़ी संजीदगी से कहा। करना क्या है, बस इसका काम खत्म, निकाल बाहर फेंकूंगा इसे, बाजिल ने कहा। यार, वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और ये बच्चा तुम्हारे लिए मसला बन सकता है। इससे तू अभी सब्र कर कुछ माह, और जब बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो इसे अटवा ली, और फिर तेरी नकली बीवी को कैसे संभालना है वो मैं देख लूंगा, उमैर ने खबासत से कहा। लेकिन मैं इस बच्चे का क्या करूंगा, बाजिल ने हैरानगी से पूछा। बच्चे को किसी भी यतीम खाने में दे दी, उमैर ने आसान हल बताया। चल ठीक है, बाजिल ने आम से लहजे में कहा। शाह साहब पहली बार हमारे घर आए हैं और चाय पानी लेकर आओ, सेठ ने अपने पास खड़े आदमी को कहा। शाह ने जब नायाब की काफी कॉल्स देखी तो परेशानी से उसे कॉल करके सारी सूरत हाल मालूम की। नायाब ने उसे सब कुछ बता दिया था और अब रेयान शाह सेठ के अड्डे पर मौजूद था। तेरी हालत देख के तो लग रहा है कि मलिक ने अच्छी खासी तेरी धुलाई की है, शाह ने टांग पर टांग रखते हुए कहा। मलिक ने मेरे साथ गलत किया, इसे तो सजा मिलेगी, महरूम मेरी है, सेठ ने शाह को घूरते हुए कहा। शाह के आगे बढ़कर सेठ का गिरेबान पकड़ा और उसके माथे पर अपनी पिस्टल रख दी। ये सब इतना अचानक हुआ कि शाह ने सेठ को संभलने का मौका नहीं दिया था। तू अगर मुझे महरू के आस पास भी नजर आया तो मलिक ने तो तेरी कुछ हड्डियां तोड़ी हैं, मैं सबसे पहले तेरी गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा, और मेरी बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा ले, क्योंकि शाह अपनी बात दोहराता नहीं है, रेयान ने सर्द लहजे में कहा था, और सेठ को छोड़कर पीछे खड़ा हो गया। इस वक्त तुम मेरे अड्डे पर मौजूद हो, अगर मैं चाहूँ तो इस वक्त तुम्हें खत्म करा सकता हूँ, सेठ ने धमकी देते हुए कहा, जिस पर शाह ने कहका लगाकर हंसने लगा। चल, तो आज मुझे अपनी हिम्मत दिखाई दे, तेरे सामने खड़ा हूँ, मार मुझे, शाह ने सीने पर हाथ बांधे हुए संजीदगी से कहा। सेठ खा जाने वाली नजरों से शाह को देख रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर यहाँ आया तो यकीनन इसके आदमी भी इसके साथ होंगे
और सेठ अभी भी इस पोजीशन में नहीं था कि शाह से लड़ सकता, इसलिए खामोश ही रहा। समझदार है तू, शाह ने तंजिया लहजे में कहा और लंबे लंबे ढक बढ़ता वहां से चला गया। रूही बेटा, तुम गांव क्यों जाना चाहती हो? यहाँ कोई मसला है तुम्हें? सफिया बेगम ने परेशानी से पूछा। इनको अचानक रूही के गांव जाने पर हैरानगी हो रही थी, क्योंकि रूही को गांव इतना पसंद नहीं था। मामा, मेरा दिल कर रहा है, रूही ने नजरें झुकाकर कहा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जल्दी वापस आने की कोशिश करना। अगर तुम ज्यादा दिन वहां रुकी तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, सफिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इनको रूही कुछ परेशान सी लगी थी। शाह जो अपने कमरे में दाखिल हो रहा था, अपनी माँ की बात सुनकर वहीं रुक गया और सफिया बेगम के कमरे में जाने के बजाय रूही के कमरे में चला गया। रूही अपने कमरे में दाखिल हुई और बिना बेड की तरफ एक देखे अलमारी से कपड़े निकालने लगी। शाह संजीदगी से रूही को देख रहा था, जो अपने ख्यालों में गुम कपड़े निकालने में बिजी थी। जब कुछ कपड़े लेकर बेड के करीब आई और सामने खड़े शाह के सीने से जा टकराई। उफ, रूही लग गई ना दीवार तुझे, रूही ने मुंह में बड़बड़ाते हुए अपना माथा मसला था। कहाँ जा रही हो तुम? शाह की भारी आवाज कमरे में गूंजी तो रूही एकदम डर से उछली और सामने खड़े शाह को घूरने लगी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? शाह ने सख्त लहजे में पूछा। वो खुद भी नहीं जानता था कि क्यों वो रूही से ये सवाल कर रहा है। मेरी मर्जी, मेरा दिल कर है गांव जाने का, रूही ने रूखी लहजे में कहा और अपने बैग में कपड़े रखने लगी। मुझे खुद को इग्नोर किए जाने पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शाह ने रूही को बाजू से पकड़कर खुद के सामने खड़े होते हुए कहा। आपका मसला क्या है? मेरे यहाँ रहने से भी आपको मसला था, अब जा रही हूँ तो अब भी आपको मसला हो रहा है, रूही ने अपने बाजू आजाद करवाते हुए कहा। अगर जा रही हो तो कभी वापिस मत आना, शाह ने रूही का बाजू छोड़ते हुए कहा। फिक्र मत करें, अब कभी वापस नहीं आऊंगी, रूही ने रोंदे हुए लहजे में कहा और अपने कपड़े बैग में रखने लगी। शाह ने गुस्से से रूही के कमरे से निकल गया था। इसके जाते ही रूही बेड पर बैठकर बेबसी से अपने कपड़ों को देखने लगी थी। शाह गुस्से में अपने कमरे में आया था, रूही को तो न कभी ना वापस आने का कहकर, लेकिन दिल ना जाने क्यों बेचैन हो रहा था और गांव में इसका मंगेतर भी होगा, ये सोचकर उसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। शाह रूही के हाथ में पहनी हुई इसके नाम की अंगूठी को तो बर्दाश्त नहीं कर रहा था, अब तो रूही पूरी की पूरी इसके पास जा रही थी। शाह टहलता हुआ अपने बेचैन होने का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। काफी देर टहलने के बाद जब कुछ समझ नहीं आया तो गाड़ी की चाबियां उठाकर घर से बाहर निकल आया। सवेरा जब बाजिल के साथ घर छोड़कर चली गई थी तो सना ने पूरे मोहल्ले वालों को बता दिया कि सवेरा किसी लड़की के साथ भाग गई है। अपनी लाडली बेटी के भागने का सुनकर अकील साहब को हार्ट अटैक आया और वो अस्पताल जाने से पहले ही खाल के हकीकी से जा मिले थे। रुकैया बेगम भी गुमसुम सी हो गई थी। हमेशा सवेरा इनको तकलीफ दी थी, लेकिन इस बार की तकलीफ कुछ ज्यादा ही थी। सुबह सवेरा का निकाह भी था, लोग बातें बना रहे थे। रुकैया बेगम खामोश थी, इनकी बेटी ने इनका भरम नहीं रखा तो बाकियों से क्या गिला करती। अकील साहब के जाने के बाद एक रात रुकैया बेगम भी घर छोड़कर कहीं चली गई थी। लोगों की बातें इनको सुकून से जीने नहीं दे रही थी। किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ गई। मान, तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? राबिया बेगम ने टीवी देखते मान से पूछा। बहुत अच्छे ख्यालात हैं मेरा शादी के बारे में, लेकिन मामा वो मैं अपनी बीवी के साथ ही डिस्कस करूंगा, मान ने संजीदगी से कहा। शट अप मान, मेरा मतलब है तुमने शादी कब करनी है? राबिया बेगम ने घूरते हुए कहा। मान कहका लगाते हंसने लगा। मामा, जब कोई लड़की पसंद आएगी तो शादी भी कर लूंगा, मान ने आम से लहजे में कहा। मुझे कोमल बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ वो मेरी बहू बने, राबिया ने मान की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ कोमल का सुनकर संजीदगी छा गई थी। मामा, मैं कोमल को पसंद नहीं करता और शादी में एक ऐसी लड़की से करूंगा जिससे मुझे मोहब्बत होगी, और बेहतरी इसी में है कि आप कोमल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें, मां ने संजीदगी से कहा और वहां से उठकर चला गया। राबिया अभी मान से बात करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी सुनाकर चला गया था। सवेरा को अब इस फ्लैट से वहशत होने लगी थी और काफी कमजोर भी हो गई थी। बाजिल ने एक चक्कर भी घर नहीं लगाया था। आज उसे शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आ रही थी। ना चाहते हुए भी आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे जब दरवाजा किसी ने नॉक किया था। सवेरा ने अपने आंसू साफ किए तो दरवाजा खुला तो सामने आमिर खड़ा था। इसका इरादा बाजिल को सरप्राइज देने का था, लेकिन इसके फ्लैट पर एक लड़की को देखकर हैरान हुआ था। आप कौन? आमिर ने हैरानगी से सामने खड़ी सवेरा से पूछा। मैं बाजिल की बीवी हूँ, आप कौन है? सवेरा ने हैरानगी से पूछा। बीवी?
लफ्ज पर आमिर ने आंखें फाड़े सवेरा को देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। बाजिल, ये तूने क्या कर दिया? आमिर ने दिल में कहा और सामने खड़ी सवेरा की हालत पर अफसोस करने लगा। मैं आमिर हूँ, बाजिल का दोस्त। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन शायद वो घर में नहीं है, तो मैं चलता हूँ, आमिर ने कहा और वहां से जाने लगा। वो पिछले 8 माह से घर नहीं आए और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। आप प्लीज इनसे बात करें तो मेरा पैगाम इन तक पहुंचा दीजिएगा, सवेरा ने जल्दी से कहा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? आमिर ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। जी बिल्कुल, सवेरा ने कहा। आप ऐसा करें, अंदर आ जाएं, अगर आपको कोई मसला नहीं है, सवेरा ने रास्ता देते हुए कहा तो आमिर खामोशी से अंदर आ गया। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? सवेरा ने पूछा। नहीं, आप बैठे, आमिर ने सवेरा की हालत के मद्देनजर कहा। आपको बाजिल कहाँ मिला था? आमिर ने संजीदगी से पूछा। तो सवेरा ने अपनी पहली मुलाकात से लेकर अब तक सब कुछ आमिर को बताया। इसके लहजे की शर्मिंदगी को आमिर ने महसूस किया था। आपको अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आपको क्या पता कि बाजिल किस तरह का इंसान है। आप 2 या 3 मुलाकात में किसी इंसान को उसकी हद तक नहीं जान सकती कि आप उससे निकाह कर लें। और बकौल आपके कि बाजिल को यहाँ से गए 8 माह हो गए हैं और वो किसी दूसरे के हाथ खर्चा पानी भेज देते हैं, लेकिन खुद नहीं आता। आप अभी भी नहीं समझी बाजिल क्या चाहता था? आमिर ने संजीदगी से सवेरा को देखते हुए कहा, जो नजरें झुकाए आंसू बहा रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। आप जानती भी हैं कि बाजिल कौन है? आमिर ने सद लहजे में पूछा। इससे पहले सवेरा कोई जवाब देती, उसे अपने पहलू में शदीद दर्द की लहर उठी हुई महसूस हुई और वो बेसाख्ता चीख उठी। क्या हुआ? आप ठीक हैं? लेकिन सवेरा नाकाबिले हद तक होने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं बेहोश हो गई। आमिर तो घबरा गया था। उसे उस वक्त जो बेहतर लगा उसने वही किया और सवेरा को उठाकर अस्पताल ले गया। आमिर ने बाजिल को फोन करके बता दिया और खुद अस्पताल चला गया, क्योंकि इसका दिल नहीं कर रहा था कि वो बाजिल की शक्ल भी देखे। सवेरा को अल्लाह ने प्यारी सी बेटी दी थी। उसे जब होश आया तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया जो छोटा सा था। सामने सोफे पर बैठा उमैर आंखों में खबासत लिए सवेरा को देख रहा था। सवेरा ने उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उमैर चलता हुआ सवेरा के पास आया। इस बार सवेरा हिम्मत करके बैठ गई थी। आप? इसे उमैर को देखते हुए हैरानगी से पूछा। हाँ मैं। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं, बाजिल अपनी बेटी को लेकर जा चुका है और मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। उमैर ने सवेरा के चेहरे पर नजरें गांठते हुए कहा। क्या मतलब? वो मेरी बेटी को कहाँ ले गया है? सवेरा ने बुखलाए हुए अंदाज में पूछा। उसे लगा था कि बच्चे के आने के बाद बाजिल तब्दील हो जाएगा। वो तुम्हारी बेटी नहीं, सिर्फ बाजिल की बेटी है, इसकी तुम फिक्र मत करो। और बाजिल अपनी खूबसूरत बीबी को मेरे हवाले किया है ताकि मैं तुम्हारे अच्छा सा ख्याल रखूं। उमैर ने सवेरा के पास बैठते हुए कहा। सवेरा खिसक के पीछे हो गई थी। तुम झूठ बोल रहे हो, बाजिल कहाँ है? सवेरा ने कपाते लहजे में कहा। तुम सच में बहुत भोली हो। तुम्हें अभी भी लगता है कि बाजिल बहुत अच्छा इंसान है? उमैर ने तंजिया लहजे में नफी में सर हिलाते हुए कहा। वो बहुत बड़ा कमीना है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अब तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी तुम मुझे खुश करोगी जैसे बाजिल को करती थी, उमैर ने सवेरा के करीब होते हुए कहा। सवेरा को अपने करीब स्टील का जग पड़ा हुआ नजर आया। उसने पूरा जोर लगाया और इस जग को उमैर के सर पे दे मारा। हमला इतना अचानक था कि उमैर अपना बचाव नहीं कर सका और सवेरा को गालियों से नवाजने लगा। खून उबलकर बाहर आ रहा था। सवेरा ने यही मौका गनीमत में समझा और कमरे से निकल गई। अगर अब हिम्मत हार जाती तो कभी भी इस शैतान के चुंगल से बाहर ना निकल पाती। अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करते सवेरा घर से निकल गई थी। बाहर सड़क सुनसान थी, लेकिन सवेरा को अंधाधुंध चलती जा रही थी। काफी ज्यादा चलने के बाद उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। मजीद चलने की सकत नहीं थी। सवेरा वहीं दीवार का सहारा लेकर खड़ी होगी। उसे सामने वाली सड़क घूमती हुई महसूस हो रही थी और वहीं गोश से बेगाना होकर गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पास खड़ा है। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं कौन इसके पास खड़ा था। इसका दिमाग तारीखी में चला गया था। रूही रुबीना बेगम से मिलकर गाड़ी में उदास बैठी हुई थी और आंखें बरसने को तैयार थी, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। अपने ख्यालों में गुम उसे मालूम नहीं हुआ कि गाड़ी कब चली थी। 15 मिनट गाड़ी झटके लगने की वजह से रुकी। रूही भी अपने ख्यालों से बाहर आई तो ड्राइवर को देखने लगी। वो मैडम, सामने कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर ने पेशानी से कहा। जब बाहर खड़े आदमी ने ड्राइवर को बाहर आने का इशारा किया, इनके हाथों में गन्स थी। रूही के तो पसीने छूट गए। मैडम, आप बाहर मत आइएगा, ड्राइवर ने कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। बाहर आओ, इस आदमी ने रूही को भी कहा। रूही डरी सहमी गाड़ी को कोने से जा लगी। इस आदमी ने दरवाजा खोला और रूही को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। रूही के पहले ही आंसू बाहर आने को बेताब थे, अब तो हिचकियों से भी रोने लगी थी।
ہاتھ چھوڑو لڑکی کا، ملک کی بھاری آواز نے سیٹ کے آدمیوں کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ مارج ملک سیٹ کے پاس ہی جا رہا تھا جب راستے میں سے کچھ آدمی نظر آئے جو کسی لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ ملک صاحب، یہ سیٹ اور شاہ کا معاملہ ہے، آپ ان سب میں نہ پڑیں، سیٹ کے آدمی نے کہا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، لڑکی کا ہاتھ چھوڑو ورنہ نتائج بہت برے ہوں گے، ملک نے غراتے ہوئے کہا۔ سیٹ نے کہا کہ اس لڑکی کو لے کر آنا ہے اور ہم اس لڑکی کے بغیر نہیں جائیں گے۔ سیٹ کے آدمی نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ سیٹ کو ختم کرنے سے پہلے تم لوگوں کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، ملک نے اپنے قدم روحی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ملک، ہمارے معاملے سے دور رہو، سیٹ کے آدمی نے گھبراتے ہوئے کہا اور روحی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ روحی کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، مارج نے روحی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو تھوڑا جھجکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگر تم لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اپنے سیٹ کو بتا دو کہ ملک آ رہا ہے، مارج نے سنجیدگی سے کہا۔ سیٹ کے آدمی مارج کی بات سنتے ہی وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ مارج نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ شاہ کو کال کر کے یہاں بلائے۔ ڈرائیور نے شاہ کو کال کی اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مارج نے سگریٹ نکالا اور لائٹر سے سلگایا۔ روحی کو ملک دیکھ کر بھی خوف آ رہا تھا۔ مارج نے دوبارہ روحی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور گاڑی سے ٹیک لگائے شاہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ غصے میں اس جگہ پر آیا اور روحی شاہ کو دیکھ کر گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ ملک کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی جو شاہ کو جلانے کے لیے کافی تھی۔ ریان شاہ اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، بہت بری بات ہے، ملک نے شاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شاہ اپنی خطرناک گھوڑیوں سے روحی کو نواز رہا تھا جو سہمی سی کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو جا کر، شاہ نے کرخت لہجے میں کہا۔ روحی وہاں سے جانے لگی لیکن پھر مڑ کر ملک کے پاس آئی۔ تھینک یو روحی، روحی نے مارج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینکس کی ضرورت نہیں، اگر آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں اس کی ہیلپ کرتا، مارج نے سنجیدگی سے کہا۔ ہو گیا، اب جاؤ گاڑی میں بیٹھو جا کر، شاہ نے غصے میں روحی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ روحی نے شاہ کو گھور کر دیکھا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اگر تم میرے منہ سے شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہو تو تم غلط سوچ رہی ہو، مارج ملک، ریان شاہ نے تیکھے لہجے میں ملک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ریان کی بات سن کر مارج کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ میں نے تمہارے شکریہ کا اچار نہیں ڈالنا ریان شاہ، اپنا شکریہ اپنے پاس رکھو، لیکن ایک بات میری اچھے سے سمجھ لو، میری مہرو سے دور رہو ورنہ ملک پھر برا بن جائے گا، مارج نے سنجیدگی سے کہا۔ مہرو تمہاری کب سے ہو گئی مارج ملک، ذرا اپنے گھر کے مردوں پر نظر دہراؤ، آج وہ جس حال میں ہے اس میں تمہارے گھر والوں کا ہاتھ ہے، اور جس گھر والوں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے وہ کیسے اس خاندان کے مرد کو اپنا سکتی ہے، شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، مارج نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، شاہ نے ملک کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ مارج شاہ کی پشت کو گھور رہا تھا، اسے ریان شاہ کی بات سمجھ میں تو نہیں آئی لیکن اسے سوچ لیا تھا کہ پتہ لگا کر ہی دم لے گا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ریان تیز رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آہستہ گاڑی چلائیں، میں گاؤں جانے سے پہلے مرنا نہیں چاہتی، روحی نے شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، اپنے نمونے منگیتر سے ملنے کی اتنی جلدی ہے تمہیں، شاہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، منگیتر ہے میرا، کیوں نہیں ملوں گی میں اس سے، روحی نے کہا۔ شاہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے روحی کو دیکھا جو ریان شاہ کے سنجیدہ سے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ راستہ گاؤں کی طرف تو نہیں جاتا، روحی نے سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہیں گاؤں لے کے جا رہا ہوں، شاہ نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب، پھر ہم کہاں جا رہے ہیں، روحی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہنی مون پر، شاہ نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، شادی سے پہلے ہنی مون پر نہیں جاتے، روحی نے گھورتے ہوئے کہا جبکہ غلط وقت پر غلط بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اتنی سیریس سچویشن بھی شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، روحی کو جب خود کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو بکلا کر جلدی سے اپنی بات کی صفائی دینے لگی۔ شاہ نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور روحی کی طرف مڑا۔ خاموش ہو جاؤ، ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں اور ہنی مون بھی منا لیں گے، پھر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، شاہ نے روحی کے ہونٹ کے کونے کو انگوٹھے سے سلاتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ شاہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں، روحی نے تھوڑا پیچھے کھسکتے ہوئے کہا۔ ابھی تو کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، پہلے نکاح کروں پھر کچھ کروں گا، شاہ نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، اور میں کیوں آپ سے نکاح کروں، اور شاید آپ ایک بات بھول رہے ہیں کہ میں ایک ملازمہ ہوں جس سے آپ کو نفرت ہے، اور اب آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیوں، روحی نے غصے میں شاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو گہری نظروں سے روحی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تو میں اب بھی میرے لیے ملازمہ کی حیثیت رکھتی ہو، اور نکاح میں تمہارے ساتھ کس وجہ سے کر رہا ہوں تمہیں بہتر بتانا نہیں سمجھتا، شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔
ریان کی بات سن کر روحی کے آنکھوں میں پانی تیرنے لگے تھے۔ اگر تم روئی تو اپنی گاڑی سے تمہیں یہیں کچل دوں گا، سمجھی؟ شاہ نے روحی کا بازو پکڑتے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے گھر جانا ہے، چھوڑیے میرا ہاتھ، روحی نے چلاتے ہوئے کہا اور اپنے بازو کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کرنے لگی۔ شاہ خاموش نظروں سے روحی کو دیکھ رہا تھا، جیسے جس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر تم بنا نکاح کے ہنی مون منانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہ نے روحی کے آئے چہرے کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، آپ بھی اپنے باپ جیسے ہیں، باپ بیٹی کی عمر لڑکی پہ نظر رکھتا ہے اور بیٹا زبردستی اپنی منمانی کر رہا ہے۔ روحی نے بھی شاہ کو دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاہ نے روحی کا بازو چھوڑ کر ایک زوردار تھپڑ روحی کے رخسار پر رسید کیا۔ روحی زمین پر اوندے منہ جا گری تھی، اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا تھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہارے منہ سے کسی بھی قسم کی بکواس سنی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ شاہ نے روحی کے بالوں کو پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ روحی اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ روحی نے بے یقینی کی کیفیت میں شاہ کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ روحی کی بات سن کر شاہ کو بھی ہوش آیا تھا۔ اس نے روحی کے بالوں کو چھوڑ دیا اور کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ روحی ابھی بھی اسی انداز میں بیٹھی شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ریان، کیا کر دیا تو نے؟ شاہ نے خود کو کوستے ہوئے کہا اور روحی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اب سپاٹ تھا۔ اندر چلو، شاہ نے شرمندگی بھرے لہجے میں روحی کو کہا، جس نے شاہ کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ برا تو بن ہی گیا ہوں تو اور برا سہی، شاہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور روحی کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے باہوں میں بھر کر گھر کے اندر لے گیا۔ روحی اپنا پورا زور لگا رہی تھی لیکن شاہ نے اسے گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے پڑے صوفے پر پھینکنے والے انداز میں بٹھایا۔ شاہ، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں آپ سے نکاح ہرگز نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ روحی نے شاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ شاہ روحی کی بات سن ہی کہاں رہا تھا، وہ خود کے دیے گئے نشان کو دیکھ رہا تھا۔ باہر تم کیا بکواس کر رہی تھی؟ شاہ کی سنجیدگی آواز نے روحی کو پل بھر کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے گاؤں جانا ہے، آپ پلیز مجھے گاؤں چھوڑ دیں، روحی نے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ سے کہا۔ اتنے میں شاہ کا موبائل رنگ ہوا تو اس کے آدمیوں نے مولوی صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ میری بات کو اپنے چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح فٹ کر لو، روحی، تمہارا نکاح آج اسی وقت میرے ساتھ ہوگا، چاہے اس میں تمہاری مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ اس لیے مولوی صاحب آ رہے ہیں تو اچھے بچوں کی طرح نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے انکار کیا تو جو مولوی نکاح پڑھوانے آ رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے گولی مار دوں گا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کسی بے قصور کے قتل کی وجہ بننا چاہتی ہو یا نہیں۔ شاہ نے پسٹل سے روحی کے چہرے کو بال کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، جو سانس روکے خاموشی سے پسٹل کو دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال سے تم اچھے سے سمجھ گئی ہو، سر پر دوپٹہ اوڑھو، گھونگھٹ نکالو، شاہ نے حکیمہ لہجے میں کہا۔ روحی نے بنا کچھ کہے ریان شاہ کی بات مان لی۔ وہ جانتی تھی ریان جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائے گا۔ شاباش۔ ریان نے روحی کو صوفے پر بٹھایا اور اتنے میں مولوی کے ساتھ ریان کے کچھ آدمی بھی آ گئے۔ روحی گمسم سی بیٹھی تھی، بے خیالی میں اس نے قبول ہے بولا اور سائن کیے۔ شاہ کا دل خوشی کے مارے جھوم رہا تھا۔ اپنی حالت پر شاہ خود بھی حیران تھا۔ روحی سے نکاح کے بعد اس کے دل اسے کھو دینے کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کو شاہ کے آدمی وہاں سے لے گئے تھے۔ روحی ابھی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ گھٹنے کے بل روحی کے قدموں میں بیٹھا اور اس کے چہرے کو دوپٹے سے آزاد کیا جو رونے میں مصروف تھی۔ شاہ نے لمبا لمبا سانس لیا اور اپنی انگلی کے پوروں سے روحی کے آنسو صاف کیے جو اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ جو شاہ کے سوال کو اگنور کرنے میں مصروف تھی۔ اب سے تم یہیں رہو گی، اکیلی، صرف تم اور میں۔ گھر کو اچھے سے دیکھ لو، ایک ہی کمرہ ہے جو اب ہمارا ہے۔ جاؤ فریش ہو جاؤ اور اپنے ان پیارے سے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بناؤ۔ شاہ نے روحی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں سخت لیتے ہوئے کہا۔ روحی آنکھوں میں حیرت لیے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے دیکھو گی تو کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، پھر تم ہی مجھ سے شکوہ کرو گی، شاہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ذومعنی الفاظ میں کہا۔ روحی شاہ کی بات سمجھ کر اسے گھورنے لگی تھی۔ مجھے گاؤں جانا ہے، روحی نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے روحی میڈم، آج کے بعد تم کبھی بھی گاؤں جانے کی بات نہیں کرو گی، شاہ نے روحی کو اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا اور کمرے کی طرف لے گیا۔ روحی اپنا پورا زور لگا رہی تھی لیکن سامنے والا بھی ریان شاہ تھا جو اپنی منمانی کرنے والا تھا۔ ملک کے آدمیوں نے اسے بتا دیا تھا کہ سیٹھ بھاگ گیا ہے کیونکہ سیٹھ جانتا تھا کہ اگر مارش ملک اس کے اڈے پر آ رہا ہے تو یقیناً اس کی جان لے کر ہی جائے گا۔ مارش ملک لیٹا شاہ کی کئی باتوں پر غور فکر کر رہا تھا۔ مہروں کے ساتھ کس نے غلط کیا؟ شاہ کیا کہہ رہا تھا؟ ملک کافی دیر سوچتا رہا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب تو مہرو ہی بتا سکتی تھی، اس لیے مارش نے گاڑی کی چابیاں پکڑی اور کمرے سے نکل گیا۔
मारिच कोठे के अंदर दाखिल हुआ तो सामने खड़ी मेहरू को बाजू से पकड़ते हुए इसके कमरे में ले गया, जो डांस के कुछ स्टेप सीख रही थी। अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेहरू ने घुरते हुए पूछा। मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम इस हालत में पहुंच गई? मारिच ने मेहरू की आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में पूछा। तुम्हारे घर वालों ने नहीं, बल्कि तुम्हारे घर के एक फर्द ने। अगर तुम इससे पूछोगे तो वही तुम्हें बेहतर तरीके से समझा देगा। वैसे कुछ दिनों से मलिक साहब आए भी नहीं है। खैरियत है? मेहरू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं मेहरू, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जानने लगा हूँ। मारिच मजीद बात करता जब मेहरू ने रास्ते में इसकी बात को टोक दिया था। तुम मुझे जानने लगे हो? गलत, मेहरू ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। तुम मुझे जान भी नहीं सकते मारिच मलिक, कभी नहीं, मेहरू ने संजीदगी से कहा। अब तो तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूँ मेहरू बीबी। मारिच मलिक मेहरू से मोहब्बत करने लगा है। अब तुम इसे मजाक समझो या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये बात किसी को भी बताने में कबाहत नहीं है। मारिच ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। मोहब्बत नफरत है मुझे इस लफ्ज से। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, सब कुछ धोखा होता है, फरेब होता है। और तुम कह रहे हो तुम मुझे जानते हो, मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। कैसे तुम इस बात का दावा कर सकते हो कि तुम मुझे जानते हो? तुम तो मेरे असल नाम से भी वाकिफ नहीं मारिच मलिक। मेरा नाम मेहर है और ये बात इन लोगों को पता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेहरू ने तंज या लहजे में कहा। मारिच को याद आया कि शाह भी उसे मेहर कह रहा था। तो रेहान शाह भी तुम्हारे दिल के करीब है? रेहान शाह का ख्याल ही मारिच मलिक को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। तुम कह सकते हो, रेहान तुम्हारी तरह का नहीं, वो तुमसे अलग है, मेहरू ने बिना डरे मारिच की सुर्ख होती आंखों में देखते हुए कहा था। मारिच ने गुस्से में मेहरू का बाजू पकड़कर पीछे कमरे के साथ लगाते उसे खुद के करीब किया था। मेहरू के मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। तुम्हें सारे मर्द पसंद हैं सिवाय मेरे, ऐसा क्यों? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मारिच ने सर्द लहजे में पूछा। मारिच, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है, मेहरू ने कराहते हुए कहा। और मेरी तकलीफ का क्या जो तुम मुझे देती हो? अपनी लफ्जों से इनका मदावा कौन करेगा मेहर जी? मारिच मलिक ने मेहर पर जोर देते हुए कहा। मेहरू ने मलिक की आंखों में देखा, जहां उसे सर्द मेहरी के साथ तकलीफ भी दिखाई दी थी। मेहरू ने नजरें चुराई। नजरें क्यों चुरा रही हो? मेरी तरफ देखो, देखकर बात करो। मलिक ने ठोरी से मेहरू का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। मेरा पीछा छोड़ दो मलिक, मुझे हासिल करने से कुछ नहीं होगा। मेरा दिल पत्थर बन चुका है, तुम्हें तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेहरू ने तकलीफ दे लहजे में कहा। मैं तुम्हारे पत्थर दिल को मोम कर दूंगा। मेहरू, एक मौका तो देकर देखो, मारिच मलिक ने बेबसी से कहा। मोहब्बत ने उसे बेबस कर दिया था। मैं एक तवाइफ हूँ मारिच मलिक, और तवाइफ की असल जगह कोठा होती है, और तुम एक तवाइफ से निकाह करना चाहते हो। क्यों मुझे मजीद रसवा करना चाहते हो? मेहरू ने भीगे लहजे में कहा। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन वादा करता हूँ जो भी तुम्हारी तकलीफ का बायस बना है उसे जान से मार दूंगा, मारिच ने सख्त लहजे में कहा। मेहरू मारिच की बात सुनकर हंसने लगी थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ गया था। तुम कुछ नहीं कर सकते मारिच मलिक, मेरे लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, लेकिन जिसने मेरे साथ बुरा किया है वो तुम्हारा सब कुछ है। पहले भी हार मेरे नसीब में आई थी, और इस बार भी हार मेरे नसीब में आएगी। मुझसे दूर रहो। मेहरू ने मारिच के सीने पर हाथ रखते हुए उसे धकेलना चाहा, लेकिन मारिच ने अपनी जगह जरा सा भी नहीं हिला था। ठीक है, तुम अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहती तो कोई मसला नहीं। मारिच मलिक तुमसे ज्यादा जिद्दी है, मारिच ने मेहरू का बाजू छोड़ते हुए कहा था। और हाँ, अपना ख्याल रखना। मारिच ने जाने से पहले ही मेहरू की तरफ देखते हुए कहा और कमरे से निकल गया था। आज की किस्त यहीं पर तमाम हुई। उम्मीद है आपको हमारी नॉवेल्स की कलेक्शन पसंद आ रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।